If your mock test scores are not improving, don't get panic. Most of the students are doing the same mistake, and it is fixable. You can fix this mistake. So NEET is so close to you now. It's near around only 2 months left for the NEET, and many of the students are getting panic that they are not going doing good in their mock test. They might be not made for this. Stop doing this. Mock test doesn't mean that you have no potential. If you are getting low score, that means you are missing out something. Low mock test is not failure, it's a feedback that you need to improve yourself. Don't judge yourself just because of low mock scores. There are so many things you can do to improve your score, you can fix your scores. So, first of all, let us discuss why do you get low scores? Why your scores get dropped or your scores get fixed? There are few points that most of the students are doing. I will tell you the few points. If these are the few points which you are missing out, then this video is for you. But if there is something else, so you can mention in the comment also. I will try to answer your that questions also. But if these are the points that you are feeling that these points are making you score back low scores, then this video is for you. So first of all, if you know everything, your concept is very clear, but you panic during the exam, so what is the fun of giving the exam? What is the fun of getting all the concepts in your mind and you don't know what to do in the exam? You are getting rushed, like time is going on, but you do not read the question carefully. You do silly mistakes. Point number one, you panic during the exam. Point number two, you have a weak revision cycle. You do not revise daily. You are moving to the new concepts but avoid revising previous concepts. Point number three, poor mock analysis. You are giving back to back mock test but you do not analyze. Mock test does not improve your score, but analyzing the mock test will improve your score. So, so stop thinking that you are giving mock daily and daily, it will improve your score. If you are not analyzing it, it will cause you no benefit. And the fourth point is again back to back tests but without any correction. So what now? अब आप क्या करोगे? अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत आ रही है इन 4 पॉइंट्स में से, सो आई विल टेल यू 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके एंड यू विल डेफिनेटली फील अ बेनिफिट कि जब आप इन तीनों पॉइंट्स को अप्लाई करोगे ना तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा. लेकिन आप बोलो कि मैं बोल दूंगी आपको, आप सुन लोगे, अप्लाई नहीं करोगे, फिर बोलोगे आकर कि मैम नहीं हुआ, आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं है. बेटा जब तक आप खुद नहीं स्टेप उठाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा यार. चाहे आप मेरी वीडियो देखो, चाहे आप किसी और की वीडियो देखो, 10 वीडियो देखो, 100 वीडियोस देख लो, हर कोई आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी बताएगा. बट जब तक आप खुद में पोटेंशियल नहीं निकालोगे, जब तक आप खुद में झांक कर नहीं देखोगे कि आपको कहाँ कमी आ रही है, तो कौन आपकी हेल्प करेगा? कोई कैसे हेल्प कर सकता है आपकी? एक होता है ना बाहर की आप मोटिवेशन लेते जा रहे हो बट आपको खुद के अंदर से मोटिवेशन है ही नहीं, आप नहीं कर सकते हो यार. मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी. अगर आपके अंदर खुद मोटिवेशन नहीं है आप नहीं कर सकते हो. सीधी सी बात है. चाहे आपको कोई कितना भी बोले, आपके पेरेंट्स आपको कितना बोले, मैं आपको कितना बोलूँ, कोई या कोई और कितना बोल रहा है आपको, जब तक आप खुद नहीं अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे कोई नहीं बना के देगा. कोई नहीं कर सकता. हर किसी की स्टोरी अलग होती है. मेरी स्टोरी अलग है, आपकी स्टोरी अलग होगी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अप्लाई दीज स्टेप्स. लेट अस मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 1. अगर आप बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हो बिना उसको एनालाइज किए, तो स्टेप 1 करो कि बैक टू बैक मॉक टेस्ट देना बंद कर दो.
कोई ज़रूरत नहीं है हर दिन मॉक टेस्ट देने की, कोई ज़रूरत नहीं है दिन में 2-2 मॉक टेस्ट देने की। अगर आप उनको एनालाइज नहीं करो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। टेक योर टाइम, 2 से 3 दिन लो हर एक मॉक टेस्ट के बाद, उस अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, वीक चैप्टर्स जो हैं, वीक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करो, रिवाइज करो उन चैप्टर्स को, और इनकरेक्ट क्वेश्चन को दोबारा से करो। ठीक है, 2 से 3 दिन लिए आपने, एक मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आपके 2 से 3 दिन की ब्रेक है। आपने उसमें क्या करना है, वही मॉक टेस्ट आपने निकालना है, अपनी क्या क्या गलतियाँ की है उनको एनालाइज करो। आपको पता चल गया कि ये जो चैप्टर है मेरा वीक है, उस चैप्टर को पढ़ो दोबारा से, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको दोबारा से सॉल्व करो। पहली चीज़ ये। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने फिजिक्स के लिए इम्प्रूवमेंट बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। सेम आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी है पूरे फुल मॉक टेस्ट के लिए भी। अगर आप पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट की बना रहे हो तो भी दैट इज़ ओके, बट अगर आप लोग फुल मॉक टेस्ट की बना रहे हो जिन्होंने पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट की नहीं बनाई है, तो वो एक कॉमन ये मिस्टेक नोटबुक भी बना सकते हैं। उसमें आपको कंसेप्चुअल मिस्टेक्स अपनी लिखनी है, नोट करना है कि सिली कैलकुलेशन एरर आप कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे आप एरर कर रहे हो, अपने टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ को ट्रैक कर रहे हैं कि आप, हो सकता है आप बायो में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, फिर आपको फिजिक्स में टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर आप फिजिक्स पहले कर रहे हो तो फिजिक्स में इतना टाइम लग जा रहा है कि आपको बायो में टाइम नहीं मिल रहा है, या केमिस्ट्री में टाइम नहीं मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। वो आपको खुद अपना मेंटेन करना है, क्योंकि हर किसी का टाइम मैनेजमेंट अलग अलग होता है। मैंने कैसे किया था वो अलग चीज़ है, आप कैसे कर रहे हो वो अलग चीज़ है, कोई और कैसे कर रहा है वो अलग चीज़ है। तो आपको खुद अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस मिस्टेक नोटबुक को आपने क्या करना है, रेगुलरली रिवाइज करना है, ऑन द वीकली बेसिस आपने उसको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 इज़ फोकस ऑन स्टेबिलिटी नॉट परफेक्शन। बेटा परफेक्ट अगर आप सोचोगे ना कि हाँ मुझे परफेक्ट होना है, 720 आउट ऑफ 720 लाइन, यू कैन नेवर कम टू इट, आप नहीं कर पाओगे कभी भी। सो स्टॉप मेकिंग योर सेल्फ परफेक्ट, आप बस अपनी इम्प्रूवमेंट करते जाओ, कि अपनी स्टेबिलिटी लाओ, कि आपका जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट ही जाना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। जब आप सोचोगे ना कि मैं परफेक्ट करूँगा, तो आप यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, लेकिन उसके बाद आप फिर नीचे आ जाओगे। सो स्टॉप मेकिंग योर सेल्फ परफेक्ट, जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। स्टेबिलिटी लाओ अपने अंदर की। अगर आप लोगों के मान लो 450 स्कोर आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है कि यार आई जस्ट स्कोर 450, आपको ये कहना है कि मैंने पिछले मॉक टेस्ट से 20 ज़्यादा स्कोर किया है, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो हाई वेटेड चैप्टर्स को आपने रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ईजी टॉपिक्स और जो रिपीटेड टॉपिक्स है उनको आपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको, एम फॉर द स्टेबल इम्प्रूवमेंट, स्टेबल इम्प्रूवमेंट के लिए एम करना है आपको। ठीक है जी, कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। So if you fix all these mistakes, you will definitely improve your score from, I will not say it will be improved from 0 to 500, 0 to 600, but definitely if you are stuck to 400, 450, then you can definitely score above 600. And it is important for you to score above 600 to get a government medical college. So focus on your these mistakes. So now the final reminder, what you have to do is, low scores do not define your potential. If you are getting a low score, it means it is a feedback, you have to improve yourself. Don't get panic over these things, and track your improvement, that how much you are improving, not comparing yourself with others. Compare yourself with yourself only, okay, not with the others. Analyze, adjust and improve. Okay, stay calm, these 2 months are enough. If you are starting now, 2 months are enough for you.
So that's all for this video. In the next video, I will be telling you exactly how many mock tests you have to give in these 2 months so that you can score good in NEET exam. If you like this video and getting any kind of help from these videos, so please share these videos, subscribe to the channel for such more videos. Thank you.